بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پیچھے ہم نے مجرورات ختم کیا اور آج ہم توابع کا بیان شروع کریں گے. مصنف نے فرمایا کہ التوابع کل ثان باعراب سابقہ من جہت واحدہ. کل ثان باعراب سابقہ باعراب سابقہ من جہت واحدہ. اب یہ ایک عبارت لگائی تابع کی. ٹھیک ہے، اب اس کو توابع کی تعریف بھی سمجھ سکتے ہیں. یہ توابع تابع کی تعریف ہے. کلو سائن سے مراد ہے کلو سائن ہر دوسرا. اب یہ کلو سائن کہنے سے، یہ اس میں جنس تھا، اس کے کہنے سے مبتدا کی خبر، مبتدا کی خبر، ٹھیک ہے، انا کی خبر، اور جتنی بھی خبر ہے وہ ساری کی ساری داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے، انا کی خبر بھی اس میں آ جائے گی. اسی طرح جو افعال قلوب ہے اس کے بھی دو مفعول ہوتے ہیں، دوسرا مفعول بھی اس میں آ جائے گا. ٹھیک ہے، اور افعال قلوب جس کے تین مفعول ہوتے ہیں اس کا تیسرا مفعول بھی اس میں آ جائے گا، وہ بھی دوسرا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ سارے کے سارے اس میں داخل ہو جائیں گے. تو آگے مصنف نے کہا کہ اعراب ثابتی ہی ہر وہ دوسرا جو اپنے سابقہ اعراب کے ساتھ ہو، سابقہ اعراب کے ساتھ ہو. تو اس میں سارے نکل جائیں گے سوائے مبتدا کی خبر کے. مبتدا کی خبر، مبتدا کی خبر کے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح افعال قلوب کے جو مفاعل ہیں وہ بھی ابھی تک رہیں گے، کیونکہ وہ بھی دونوں ایک ہی طرح کا اعراب ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اپنے سابقہ اعراب کے ساتھ. تو مبتدا خبر دونوں رفع ہوتے ہیں، ان کا بھی اعراب ایک جیسا ہوتا ہے. اور افعال قلوب کے جو مفاعل ہوتے ہیں، چاہے وہ دو ہیں چاہے تین ہیں، ان کا اعراب بھی ایک جیسا ہوتا ہے. تو یہ باقی رہیں گے، باقی سارے نکل جائیں گے. اب جب مصنف نے یہ فرمایا کہ من جہت واحدۃ، یعنی ایک ہی وجہ ہو، دونوں جو دوسرا ہے، جو دوسرا اسم ہے، جو دوسرا جز آئے، جو تابع ہو کر آئے، اب اس کا اعراب جو سابقہ لفظ ہے اس کے اعراب کے مطابق ہوگا، لیکن ان دونوں میں من جہت واحدہ ایک ہی وجہ ہونی چاہیے. وجہ ایک ہونی چاہیے، وجہ الگ الگ نہیں ہونی چاہیے. اب مبتدا خبر میں وجہ ہی الگ الگ ہے. مبتدا کا عامل جو ہے وہ مانوی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک الگ عامل ہے. خبر کا عامل بھی مانوی ہے، ایک الگ عامل ہے. ٹھیک ہے، یا اس میں یہ بھی ہے کہ مبتدا کا عامل خبر ہے، خبر کا عامل مبتدا، یہ بھی ایک احتمال ہے. یہ بھی قول کہا جاتا ہے کہ مبتدا کا عامل تو مانوی ہے، خبر کا عامل مبتدا ہے. ٹھیک ہے، اس میں اختلاف ہوتا ہے. تو یہ ایک وجہ کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ بھی نکل جائیں گے. ہمارے قلوب کے جو مفاعل ہیں وہ بھی ایک وجہ سے نہیں ہوتے، کیونکہ افعال قلوب کے مفاعل بھی مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں. مسند اور مسند الیہ ہوتے ہیں، یہ الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں. تو لہذا یہ بھی خارج ہو جائیں گے، اور جو بقیہ پانچ توابع ہیں وہ بچ جائیں گے. رجل قائم، یہ بچے گا. رجل صالح صفت بچے گا، بدل بچے گا، تاکید بچے گا، عطف بیان عطف الحر بچے گا. ٹھیک ہے، یہ سارے اس میں شامل ہو جائیں گے. تو پتہ چلا کہ توابع کتنے ہیں؟ پانچ. توابع کتنے ہیں؟ پانچ. پہلا صفت، دوسرا عطف بالحرف، تیسرا عطف بیان، چوتھا تاکید، پانچواں بدل. یہ پانچ توابع ہیں، ان کو توابع کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، مصنف نے سب سے پہلے صفت کے بارے میں بتایا. سب سے پہلے صفت انا، تعریف بیان کی کہ تابع یدل علی معنی فی مطبوعہ مطلقا، کہ تابع وہ ہے کہ جو اپنے مطبوع میں ثابت شدہ معنی پر دلالت کرے مطلقا. ٹھیک ہے، یہ تعریف بیان کر کے آگے اس کے فائدہ بیان کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے فائدہ کیا ہے.
एक तो तखसीस फायदा है इसका, ठीक है। नात का सिफत का एक तो एक ये तखसीस का फायदा देता है, दूसरा है तोजी, तोजी का फायदा देता है, ठीक है, वजाहत का फायदा देता है। तखसीस का फायदा किस तरह देता है, जब नकीरा, जब जैसे मिसाल के तौर पर कोई नकीरा आ जाता है, रजुलन सालिहुन काइमुन, अब इसमें ये सिफत बना सवाले, मौसूफ सिफत बन के कि सवाले सिफत लगाकर इस नकरा में तखसीस पैदा की। जब इसमें तखसीस पैदा हो जाएगी तो अब ये मुब्तदा बनने के काबिल हो जाएगा, मुब्तदा बनने की इसमें सलाहियत आ जाएगी, ठीक है। या तो ये तखसीस का फायदा देगा या तोजी का फायदा देगा। तोजी से मुराद क्या है, तोजी से दो मुरादें हो सकती हैं। एक तो यह है कि नकिरा नकिरा की तरफ मुदाफ हो, नकिरा की इजाफत नकिरा की तरफ हो, ठीक है। जैसे कि गुलाम रजुल, गुलाम रजुल कायम, गुलाम रजुल कायम, ये भी एक मतलब। दूसरा ये मतलब है कि जैसे मिसाल के तौर पर अब जैद, मैंने बोला जैद, अब जैद में कौन कौन से इस्तेमाल थे, जैद में बहुत सारे इस्तेमाल थे कि जैद जो है ये ताजिर भी हो सकता है, ठीक है। ताजिर के अलावा इसके दीगर भी इस्तेमाल थे कि जैद डॉक्टर भी हो सकता है, इसका पेशा डॉक्टर भी हो सकता है, ये दीगर चीजें भी इसमें शामिल हो जाएंगी जैद में, ठीक है, जो भी प्रोफेशन होंगे, ठीक है। लेकिन आगे एक लफ्ज लगा लिया अत्ताजिर, जब ये लगाया सिफत, जब इस जैद की ताजिर की सिफत बयान कर दी, तो इस ताजिर सिफत ने इस जैद की वजाहत की है कि जैद ताजिर है, ठीक है। तो सिफत जो है या तो तफसील का फायदा देती है या तौजीह वजाहत का फायदा देती है, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, मुसन्निफ अलैहिर्रहमा आगे एक बयान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया ये वाला जो है ना तफसील और तौजीह का फायदा देते हैं, ये अक्सरी कायदा है, कुल्ली कायदा नहीं। अक्सरी कहता है कि यानी अक्सर तौर पर ऐसा होता है कि तोजी का फायदा दे या तखसीस का फायदा दे। लेकिन बसा औकत ऐसा भी होता है कि सिफत मदा के लिए भी इस्तेमाल होती है, सिफत मदा के लिए भी इस्तेमाल होती है, कभी जम के लिए भी आती है, ठीक है, कभी ताकीद के लिए भी आ जाती है, ताकीद का माना भी देती है, कभी ये रहम के माना में भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। मदा जैसे सना, मदा कैसे, जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये रहमान लफ्ज़ अल्लाह की सिफत है, रहमान अल्लाह वहदहु ला शरीक की सिफत है। अब यहाँ पर ये सिफत बतौर मदह लाई गई है, तखसीस के तौर पर नहीं, तोज़ी के तौर पर यहाँ नहीं लाई गई, ना तो इस वजाहत है और ना ही तखसीस है, बल्कि यहाँ मदह के लिए लाई गई है, सना के लिए लाई गई। इसी तरह आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अश-शैतान रजीम, तो ये जो रजीम सिफत है शैतान की, तो यहाँ पर रजीम शैतान की सिफत बतौर जम लाई गई है, तखसीस या नहीं करनी, ना ही तौज़ीह करनी है, बल्कि जम मुजम्मत बयान करने के लिए लाई गई है, ठीक है। कभी ऐसा होता है कि ताकीद का माना भी आ जाता है, जैसा कि नफ़क़तुन वाहिदा, नफ़क़तुन वाहिदा, नफ़क़तुन वाहिदा में क्या है, इसका माना है एक ही फूंक, एक ही फूंक, ठीक है, एक ही फूंक। अब इस नफा में वाहिदा का माना समझा जा रहा है, अगर हम ये वाहिदा नहीं मिलाते तो ये नफा में वाहिदा एक का माना समझा जा रहा है, ठीक है। उस जो इस नफा से जो एक का माना तफहीम हो रहा है, एक का माना समझा जा रहा है, उस माना की ये वाला वाहिदा ताकीद बन रही है, ठीक है। तो यहाँ पर सिफत तखसीस के लिए नहीं आई, यहाँ पर सिफत तौज़ीह के लिए नहीं आई, बल्कि ताकीद के लिए आई है कि उस ताकीद के लिए जो नफ्ता से समझा जा रहा है और वो है वाहिदा, ठीक है। अच्छा, आगे मुसन्निफ रहमान ने
बयान किया, फरमाया कि देखें, वला फस्लुन बैना अन यकूना मुश्तक्कन औ गैरहु। फरमाया कि सिफत जो होती है ना, सिफत वो मुश्तक हो या मुश्तक ना हो, मुश्तक हो मुश्तक ना हो चलेगा। सिफत मुश्तक भी इस्तेमाल हो जाती है, सिफत गैर मुश्तक भी इस्तेमाल हो जाती है। ये मुसन्निफ ने ये बात कही क्यों? मुसन्निफ ने ये बात इस वजह से कही है क्योंकि बाद नहवियों का ये कहना था, बाद नहवियों का ये कहना था, वो कहते थे कि भैया जो सिफत होगी वो मुश्तक होगी, सिफत हमेशा मुश्तक होती है। बाद नहवियों का ये नजरिया है कि सिफत मुश्तक होती है। अगर आप कहीं ऐसी सिफत देखें जो मुश्तक नहीं है, जो मुश्तक नहीं है, तो वहां आप इसको मुश्तक की ताबील में कर लो, मुश्तक की ताबील में कर लोगे। ठीक है, अस्माए मुश्तक्का जो 6 हैं उनमें से कोई एक होगा, अगर नहीं है तो ताबील में कर लेंगे। ये बात लोगों का ये नजरिया था, बात नाहवियों ने ये कहा है, तो मुसन्निफ उनका रद्द करते हुए कहते हैं वला फस्ल, वला फस्लुन बैना बैना अन यकूना मुस्तक़बल, अन यकूना मुस्तक़बल, मुस्तक़बल औ गैरहु। फरमाया कि वला फस्ल बैना अन यकूना, वला फस्लुन बैना अन यकूना मुस्तक़बल औ गैरहु। फरमाया कि भैया सिफत का मुश्तक होना या मुश्तक नहीं होना, मुश्तक होना और ना होना इनके दरमियान कोई फर्क नहीं है, कोई फासला नहीं है। ठीक है, इनके दरमियान कोई फासला नहीं है, कोई फर्क नहीं। ठीक है, तो मुसन्निफ ने ये वाली बात इन लोगों का रद्द करने के लिए यहाँ पर लाई है, इन लोगों का रद्द करने के लिए यहाँ पर इस्तेमाल की है। ठीक है, चलिए इबारत देखें। अत्तवाब्यो, अत्तवाब्यो कुल्लु सानिन बिइराबी साबिक़िही मिन जिहतिन वाहिदा, के तवाबे हर वो दूसरा कि जो अपने साबिका इराब के साथ एक ही वजह से हो, एक ही सबब से हो, एक ही वजह से हो। सबसे पहले सिफत का बयान किया कि अन्ना ताबिउन यदुल्लु अला मानन फी मतबूही मुतलकन, वो ताबे कि जो अपने मतबू में साबित शुदा माने पर दलालत करे मुतलकन। वफायदा दो तखसीस का फायदा तखसीस है और तौदीह या तोजी है। वक़द यकूनु लिमुजर्रद सरा अब ज़म्म अब तौकीद नहवु नफ़क़तुन वाहिदा। फरमाया कि कभी कभी सिफत सिर्फ सना के लिए आती है या जम के लिए या तौकीद के लिए आती है, जैसे कि नफ़क़तुन वाहिदा। आगे मुसन्निफ रहमा बयान कर रहे हैं कि वला फसला बैना यकून मुश्तक़न औ गैरा। फरमाया कि सिफत का मुश्तक होना या मुश्तक ना होने के दरमियान कोई फर्क नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ तक याद कीजिएगा, याद रखिएगा, तो आगे तैयारी भी कीजिएगा। कल मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।